بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مرزا ندیم بیگ، پاکش ٹی وی کے پروگرام امیگرینٹس ویوز کے ساتھ. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے مادر وطن کو نہیں چھوڑتا. اس کے مادر وطن کو چھوڑنے میں جہاں دیگر عوامل ہیں، وہاں سب سے بڑا عامل جو ہے وہ معاشی ہے. اسی جو ہے معاملے کو لے کر ہم یہاں پر جو ہے اس وقت بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیرون ملک آ کر بے شمار لوگ جو ہیں وہ بے شمار پیشوں کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں، جس میں پلے داری سے لے کر بہت اعلیٰ منصب بھی ہیں جس کے ساتھ پاکستانی وابستہ ہیں. آج جو ہے ہم ایک ایسے شعبے کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں جسے ٹیکسی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہم موجود ہیں. ان کے مسائل کے اوپر بات کریں گے، ان کے جو یہاں پہ پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، ان کو یہاں پر کیا جو ہے وہ مشکلات اس ضمن میں پیش آتی ہیں، وہ سارے مسائل جو ہے وہ آج ہم اس کے اوپر غور کریں گے. اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے. میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں جناب عاطف نذیر صاحب، ایگزیکٹو ممبر ہیں پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن کے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں چودھری شہزاد اکبر صاحب، جو پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. ان کے ساتھ جناب سعد مختار صاحب ہیں، جو ترجمان ہیں پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن کے. تو حاضرین محترم، سب سے پہلے ہم سوال کریں گے جناب چودھری شہزاد اکبر صاحب سے کہ جیسے کہ اسپین میں بے شمار پاکستانی موجود ہیں، جیسے کہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، بے شمار ان کی ایسوسی ایشنز ہیں کہ جو یہاں پر کام کر رہی ہیں، اور کئی ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جو درشنی ہیں، جن کا کام کاج کوئی نہیں ہے. اتنی ایسوسی ایشنز کی موجودگی میں شہزاد اکبر صاحب، کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے یہ پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن کیوں بنائی ہے؟ جی، ہمارے کام کرتے ہوئے ٹیکسی سیکٹر میں تو مسائل جو ہیں وہ تھوڑے سے الگ نوعیت کے ہیں، اور باقی جو ایسوسیشنز ہیں زیادہ تر وہ کلچرل ایسوسیشنز ہیں. تو ہمارے مسائل کو صرف ہم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو سیکٹر سے وابستہ ہیں اور سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. تو اپنے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک فورم کی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، اور اس پلیٹ فارم کی مدد سے ہی ہم کسی کے ساتھ بھی رینیون کر سکتے ہیں، میٹنگ کر سکتے ہیں. تو اسی مقصد کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم نے پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن کا قیام جو ہے کا وجود جو ہے عمل میں آیا. اسے کتنا عرصہ ہو گیا بنائے ہوئے؟ تقریباً پونے 2 سال کا جو نا عرصہ ہو گیا پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھے ہوئے. سر صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن جو ہے اس نے اب تک کیا کیا ہے؟ اس کے اندر پہلے نمبر پہ چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو الحمدللہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری مین اچیومنٹ ہے کہ ہم نے پاکستانی ڈرائیورز کا جو امیجن ہے وہ کمپلیٹلی چینج کی ہے. ایک وقت تھا کہ جو پیسنجرز تھے، لوکل پیسنجرز، وہ پاکستانی ڈرائیورز کو ایک طرح خیر و سمجھ کے کہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ، ہم لوگوں کے ساتھ سوار ہونے کے لیے کتراتے تھے. اور اس چیز کو ہم لوگوں نے چینج کیا اپنے بندوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہ آپ لوگ جو اپنی لینگویج کو ٹھیک کریں اور سواریوں اور پیسنجرز کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش ہے کہ پیسنجرز آپ کے ساتھ کہ آپ کو پریفر کریں. اس کے علاوہ یہ کہ اس کے بعد ہم لوگ مختلف پروجیکٹس لے کے چل رہے ہیں کہ جو کہ کنٹینیوس ہیں. اس کے اندر ہم لوگ ڈیلی SMS سروس دیتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ممبرس ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. اس کے بعد ہم لوگ ایک بک ابھی تک پرنٹ کر چکے ہیں کہ جو صرف اور صرف ٹیکسی کے کام کے دوران جو الفاظ اور جملے یوز ہوتے ہیں ان صرف مخصوص اس کے اوپر ہے، اور وہ کتلان اور انگلش کے اندر. اس کے اندر ہم لوگ جو ہے بیسیکلی اگر آپ ہماری ایسوسیشن کا نام دیکھیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے کام کر رہی ہے. ہم لوگ جو اوورآل ٹیکسی سیکٹرز کے معاملات کو اٹھاتے ہیں. ابھی ٹیکسی سیکٹر کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ شوقوں کے باہر پرادے کا مسئلہ تھا. وہ شہزاد اکبر صاحب نے اپنی ساری ذاتی کافی سے اس کو منظور کروایا تھا. وہاں پہ ڈیلی ہم لوگوں کو جرمانے ہوتے تھے. اس کے بعد ایک معاملہ ہم لوگ اب پورٹ اولمپک کا ہی لے کے چل رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹیکسی پراتا چل رہی ہے، اس کو بلاک کروانے کے لیے ایشوز آتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ اس کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکتے ہیں اسے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عاطف صاحب، آپ بتانا پسند کریں گے کہ ہمارے یہاں جو ایسوسی ایشنز ہیں، اگر ایک وقت میں ایک ایسوسی ایشن بنتی ہے تو دوسری ایسوسی ایشن اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے معرض وجود میں آ جاتی ہے. کیا ایسی کیفیت آپ کو بھی دو چار ہے یہاں پر؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے جو تنقید ہے نا وہ آپ کی تعمیر کا ایک حصہ ہے. جب آپ کوئی بھی کام ایسا کرتے ہیں جب تک تنقید والے موجود نہ ہوں آپ اچھا نہیں کر سکتے. ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اور کوئی تنظیم نہ بنائے. اگر وہ اچھا کام کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں. ہمارا تو کام ہے کمیونٹی کو بیٹر سرو کرنا. ادھر ہم لوگ ہیں، ہمارا ایک امیج ہے بھی کہ پاکستانی، ہمیں اپنا سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس مقصد کے تحت ہم نے تو یہ قدم اٹھایا تھا. اس کے علاوہ اگر اور بھی بھائی ہیں، کوئی ناراض بھی ہیں، کچھ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک ویژن ہے، وہ بھی دیں، ہم ان کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں. کوئی بھی ہے، میجارٹی جو ہے وہ بہت خوش ہے ہم سے.
वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा शहजाद साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि कतालुनिया में कुल कितनी टैक्सी हैं? जी 20,000 टैक्सी हैं कतलुनिया में, जबकि मेट्रोपॉलिटन एरिया बार्सिलोना में जो है 10,523 एक्टिव टैक्सीज हैं। और कितने पाकिस्तानी हैं कि जो टैक्सी के शोबे से वाबस्ता हैं? 1700 कुछ लोग हैं जिनके पास क्रेडेंशियल है और जिनका बकाया तौर पर आलता है, जो इस वक्त ड्यूटी पे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, वो 1300 के लगभग है। अच्छा सर साहब, एक पाकिस्तान में जो टैक्सी ड्राइवर का तस्वुर एक जहनों में उभरता है वो तो ये है कि वो कोई कनटुटा होगा, झगड़ालू तबीयत का होगा, उसकी तबीयत में बहुत अक्खड़पन होगा। क्या यहाँ पर भी कोई ऐसा तस्वुर है टैक्सी ड्राइवर्स के हवाले से? देखिए, अगर किसी का इनफरादी तौर पे ये रवैया तो उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते, मगर अगर आप ओवरऑल अगर पाकिस्तानियों के हवाले से देखें तो उसके अंदर हम लोगों का रवैया ये नहीं है, बल्कि हम लोगों ने तो अपने जो मेंबर्स हैं और जो मेंबर्स हैं उन्हें यही हम लोग हमेशा कम्युनिकेट करते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो टैक्सी चला रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे चला रहे हैं। आपके पास सारी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, अमेरिकन भी आते हैं, ब्रिटिश भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया तक से लोग आते हैं, और वो जब आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं और वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ के हैं, तो आप उससे कि जब आप कहते हैं पाकिस्तानी हैं, उसके बाद अगर आप उनके साथ अच्छा रवैया रखते हैं, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपके बारे में एक अच्छा तासुर लेके जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तानियों का अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे हमें आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि पाकिस्तानी ने किसी ने कोई गलत तरीके से किसी के साथ रवैया रखा हो। आतिफ भाई, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी बेशुमार शोबों में काम करते हैं, और जैसे कि रेस्टोरेंट का शोबा अगर हम लें, उसमें आपको मालूम है कि 16 से 18 घंटे बाज़ लोग काम करते हैं। क्या ऐसा टैक्सी के सेक्टर में भी है कि यहाँ पर ड्राइवर जो है वो अपना वक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हो, 12 घंटे 14 घंटे? क्या कोई ऐसी कैफियत है? देखिए जी, सबसे पहले तो जब हम पाकिस्तान से निकले हैं, अपने घर से इधर आए हैं, बहन भाई छोड़े, सब छोड़ा, किस मकसद के लिए आए हैं? कि अपने आप को बेहतर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, यही मकसद है ना हमारा। तो जब हम इधर आ चुके हैं तो ये मेरे ख्याल में नहीं देखना चाहिए। अगर कोई कर सकता है तो उसे करना चाहिए, अगर नहीं कर सकता, हर बंदे ने अपनी एक लिमिट रखी है, अपना एक लेवल रखा है, उसका स्टेमिना है। अगर वो 12 घंटे कर सकता है तो 12 घंटे कर सकता है। अगर 16 करते हैं लड़के जिनका स्टेमिना है इतना, वो 16 भी करते हैं। करना तो ये है कि अपने लिए और अपनी सेहत भी ना जाए और अपनी जेब में भी कुछ आए। लेकिन क्या ये अलाउ करता है यहाँ का कानून कि आप इतने घंटे काम करें? आप अलाउ तो मेरा ख्याल है कि 8 घंटे का तो कंट्रैक्ट तो चलता है। तो नॉर्मली जो फ्लौता में चला रहे हैं गाड़ियाँ, वो लड़के 12-12 घंटे कर रहे हैं। जो अकेले हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने अपने हैफे को कुछ देना है शाम को जाके, इसलिए वो 2-4 घंटे ऊपर कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो 20-20 घंटे कर सकता है, क्योंकि इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। लज्जत और जायके की रवायत, बार्सिलोना में देसी खानों का मरकज़ आदल रेस्टोरेंट। बार्सिलोना सेंटर आएँ तो देसी जायकों का लुत्फ़ उठाएँ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारी बात हो रही थी टैक्सी एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। शहजाद साहब, एक तासुर ये भी पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में उभरता है कि अक्सर पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स को ज़ुबान नहीं आती और वो सवारी को खज्जल ख्वार करते हैं। पता चलता है कि उसने एयरपोर्ट जाना है, वो किसी और रूट पर चले गए हैं, उसे समझ नहीं आई, और बाद में पता चला कि पैसेंजर की फ़्लाइट भी मिस हो गई। क्या ऐसा होता है सेक्टर में? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो हमारा TV3 पे इंटरव्यू था उसमें भी हमने बताया था कि ये एक ऐसा काम है, अगर एक फ़र्द यहाँ का मकामी जो इस शहर में पैदा हुआ है, जब वो टैक्सी चलानी शुरू करता है तो नए आदमी को सीखने में 6 माह से 1 साल लग जाता है। तो नए आदमी से कुछ गलतियाँ मुतवक्को होती हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे कतालान है। हाँ जी, तो ये सिर्फ हरकत मखसूस नहीं की जा सकती पाकिस्तानियों के लिए। और जहाँ तक ज़ुबान का मसला है तो सब जो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर हैं वो वेल सूटेड ही होते हैं, वेल एड्रेस और अच्छी ज़ुबान बोल लेते हैं। और अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए तो बकायदा गवर्नमेंट ने एक लैंग्वेज का टेस्ट रखा हुआ है और वो लैंग्वेज का एग्ज़ाम जो है वो पास करके टैक्सी ड्राइवर जो है बन रहे हैं। ये वेल सूटेड की अभी बात की शहजाद अकबर साहब ने। साहब आप क्या बताएं कि क्या टैक्सी सेक्टर में एक बंदा जो है वो अपना कौमी लिबास जैसे हमारा शलवार कमीज़ है या धोती कुर्ता पहन कर वो टैक्सी चला सकता है? नहीं, देखिए, उसके अंदर जब आप इस कल्चर के अंदर रह रहे हैं और आप इस कल्चर के अंदर रह के आप अपने लिए जो है वसाइल ढूंढ रहे हैं और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ के कल्चर को फॉलो करना पड़ता है।
पाबंदी, नंबर 2 चीज़ ये है कि जहाँ तक पाबंदी की बात है, बाकायदा ड्रेस कोड है, आप जो है चप्पल पहन के गाड़ी नहीं चला सकते, आप लोग जो है वो बरमूदास शॉर्ट्स, बरमूदास वाले जो है बरमूदास पहन के गाड़ी नहीं चला सकते। आप किसी भी ऐसे आपने जब भी गाड़ी चलानी है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, आपने जब भी इस काम के ऊपर आने आपने बाकायदा वेल ड्रेस हो गए निकलना है। लेकिन आदिफ भाई कई हमने देखा स्पैनिश वो कच्चे पागे चला रहे होते हैं। हाँ जी, वो मूलता भी करते हैं, हाँ जी। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुल्ता होता हाँ है। जी, उसे मूलता होता है, हम्म। जो भी घुटनों के ऊपर होता है जी, उसे जी। मूलता करते हैं वो। अच्छा जी। हाँ, वो कंट्रोल करते हैं। अच्छा शहजाद साहब, एक तासुर ये भी है कि बाज़ दफ़ा हमारे जो लोग इस सेक्टर में आ रहे हैं उन्हें रस्तों का सही नहीं मालूम होता और वो सवारी को घुमाते फिराते रहते हैं, और बाज़ दफ़ा ये शिकायत भी आती है बाज़ पैसेंजर्स की तरफ से कि ये बाज़ लोग जो है वो जानबूझ के भी करते हैं और बाज़ लोग जो है हकीकत में करते हैं, और वो जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि उनका मीटर जो है वो ज़्यादा चले। क्या कोई ये तासुर सही है? ये पाकिस्तानी के मतलब आप पूछ रहे हैं जी, या और आप पाकिस्तानी पूछ के रहे हैं? मुतल्लिक मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, पाकिस्तानी के मतलब ये तासुर क्योंकि यहाँ बिल्कुल मकामी गलत है। मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। अमूमन ये लोग जो पुराने हो जाते हैं ना किसी भी सेक्टर में, जिनको 10 साल से 20 साल का अरसा हो जाता है और जिनके रंग नस्ल को देखकर पता चल रहा हो कि यहाँ के ही हैं, तो हम चूँकि यहाँ के मकामी नहीं हैं, इमिग्रेंट्स हैं, तो हमारे ज़हन में ये भी होता है कि हमारे रंग को भी देखकर अगला जो है ना 100% हम पर एतमाद नहीं अपना कर रहा होता। तो इसके एतमाद को भी हमने ठेस नहीं पहुंचानी। और बाकी ये है कि हमारी जो माहाना जो मीटिंग होती है, हम जो अपनी वर्कशॉप रखते हैं उसमें ये बताते हैं बाकायदा तौर पर कि ऐसी हरकतों से हमने ग्रेज करना है, और मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी जानबूझकर किसी को बोलता नहीं देता। अच्छा, हाँ। ये भी सुना जी कि बाज़ कोई नहाते धोते भी नहीं है और वो बॉडी स्प्रे वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते उनके जिस्म से। दरअसल ये एक तासर दिया जा रहा है हमारे मुतल्लक। हम्म, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी और मुझे ये तो है कि मेरे पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, मुझे उनका दर्द है। किसी भी फोरम पे कोई भी बात उनके खिलाफ हो तो मुझे तकलीफ है। ये बींगे पाकिस्तानी मुझे होनी भी चाहिए। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम इस सेक्टर में आ गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये यहाँ के मकामी लोग, बहुत सारे बाहर के लोग भी हैं, वो भी ये एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं हमारे खिलाफ कि किसी न किसी तरीके इनको ब्रेक किया जाए, ये इस सेक्टर में दाखिल ना हो। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई बंदा नहा के नहीं आता या वो उसने परफ्यूम नहीं लगाई है। मैंने खुद देखा है कि इधर स्पेनिश भी वो लोग हैं, वो ऐसे कुछ हैं भी जो इसी तरह के लगते हैं जैसे वो नहाए नहीं है या ऐसा, ये कुछ भी, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा सेंसिबल बंदा है जो घर से निकलता है, एक वर्क पे जा रहा है, काम पे जा रहा है, उसे पता है मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैंने टैक्सी में बैठना है, मैंने टैक्सी को सर्व करना है, मैं नहा धो के आऊँ। अगर टैक्सी ड्राइवर है वो भी यही सोच के आता है, यार मैंने इतनी सवारियाँ उठानी है, पता नहीं किस किस मुल्क के बंदे होंगे। वो आपको पता है ना, वो पाकिस्तान में कहते हैं कि अगर गल्ला लबड़ी हों तो खुआ तो या तंदूरा तो। टैक्सी सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जहाँ से आपको हर किस्म का बंदा मिलेगा। सही। ये नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ के, फॉरेन कंट्री के हर किस्म का बंदा इधर आता है, और हर पेशे से जो है ना मुंसलिक है वो बंदा इधर आ रहा है। तो हमें खुद एहसास हो जाता है, आदमी को भी, हर बंदे को, कि यार मैंने कम से कम इतना अपना वेल ड्रेस रखना है कि अगला बंदा ये ना समझे कि यार ये कैसा है, ये है भी फॉरनर हो, ये बैठा भी ऐसे है। और ये बात हमारे सिलेबस में शामिल होती है, बाकायदा हमें बताई जाती है कि आपने लिबास अच्छा प्रॉपर जो है पहनना है, और उसके बाद लिबास के साथ साथ आपने अपनी गाड़ी को भी साफ रखना है। सही। सस भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पर मुझे ये बताएं कि बाज़ लोगों के जहन में ये तासुर होता है कि जो बंदा टैक्सी चला रहा है वो टैक्सी का मालिक भी है। क्या ऐसी सूरत हाल है कि जो टैक्सी चलाने वाले हैं वो टैक्सी के मालिक भी हैं या मालकान कोई और होते हैं? देखें, कानूनन जो है जो भी ड्राइवर है, कानूनन दो टाइप के बंदे गाड़ी चला सकते हैं, जो कि खुद मालिक है या जो तरबाखा दौर हैं। इस टाइम जो है तकरीबन 250 के करीब पाकिस्तानी के जो अपनी टैक्सी के मालिक हैं वो लोग खुद भी चला रहे होते हैं वर्कर के तौर पे, और मेजॉरिटी जो है वो वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, आम गाड़ी जो है वो तो सस्ती कीमत की होती है, लेकिन टैक्सी की कीमत क्यों ज़्यादा? क्या खेपेसी की वजह से, या वो टैक्सी रेडियो सिस्टम की वजह से, किस वजह से, या रंग उसका पीला जो है वो महंगा होता है, क्या वजह है? ये टैक्सी लाइसेंस की वजह से जो उसके ऊपर कालका लगा होता है, 10,523 टैक्सी जो है वो फिक्स है उनकी तादाद, और ये होता है कि वो तादाद बढ़ नहीं सकती। ठीक है, अगर मैंने टैक्सी खरीदनी है तो पहले जिसके पास टैक्सी का वो लाइसेंस है वो बेचेगा और मैं खरीदूंगा, या फिर कुछ लोग तो 5 या 10 साल के बाद, ये एक ऐसा प्रोफेशन है इसमें लोगों का आना जाना लगा रहता है,
तो दूसरा जो है कि एक कानून है कि जब 65 साल का कोई बंदा हो जाता है तो रिटायर्ड होने से पहले उसे टैक्सी का लाइसेंस बेचना पड़ता है। तो जब वो बेचेगा तो फिर मैं खरीदूंगा। वो लाइसेंस की तादाद फिक्स होने की वजह से उस लाइसेंस की असल में वैल्यू है, उसकी एक कीमत है। बाकी तो गाड़ी जो है वो आप मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, स्कोदा भी डाल सकते हैं, सीएट भी डाल सकते हैं। असल वैल्यू जो टैक्सी के लाइसेंस की है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। लज्जत और जायके की रवायत, बार्सिलोना में देसी खानों का मरकज़ आदल रेस्टोरेंट। बार्सिलोना सेंटर आएँ तो देसी जायकों का लुत्फ़ उठाएँ। वेलकम बैक नाजरीन, हम पाक टैक्सी एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ उनके मसाइल पर बात कर रहे हैं। तो शहजाद अकबर साहब, एक सवाल ये भी है कि एक बंदा अगर सवा दिल के लिए टैक्सी को बुक करता है और वो वहाँ पर जाता है और उसका एक आध मिनट का काम है और वो काम करके अगर वापस उसी टैक्सी को हायर करता है तो क्या वो वापसी का या दोनों तरफ का किराया देगा? क्या सूरत हाल होगी उसके किराए की? जी, एक्चुअली जो टैक्सी मीटर है वो उसको इस तरह बनाया गया है कि जो एक तरफ का जो किराया ना उससे वसूल किया जाता है। जब हम वापस आते हैं तो बहुत थोड़े उसके जो है ना पैसे बनते हैं। बिलफर्ज अगर हम साबादिल बार्सिलोना से जा रहे हैं तो वहाँ तक 60 यूरो बन जाते हैं, 50 यूरो बन जाते हैं, तो वापसी पे सिर्फ 4-5 यूरो बनेंगे। अच्छा, हाँ जी, वो भी नहीं बनते कई दफ़ा। अच्छा। वापसी पे जब जो टैक्सी आती है ना तो टैक्सी मरकार नहीं करती, वो तारीफ़ा जो होता है ना वो मरकार नहीं करता। सिर्फ आपने जब ब्याहे पे रुकना है या किसी इशारे पे रुकना है तो मरकार करेगा। तो कितने कर लेगा? 2 या 3 यूरो बनेगा। बहुत थोड़े पैसे बनते हैं। अच्छा, बसा औकात पैसेंजर फ़ोन करके टैक्सी मंगवाता है। अब टैक्सी ना जाने वो 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, वो आती है तो वो चार्जेस कहाँ से शुरू होते हैं और वो कितने उसकी परसेंटेज होती है वो चार्जेस की? क्या वो आप बताना पसंद करेंगे? टैक्सी मीटर जो है हर साल तारीफ़ा जो कीमत टैक्सी की वो तो चेंज होती रहती है। अब जो मौजूदा है वो 2 यूरो और 5 सेंट से शुरू होता है। तो दिन के वक्त अगर कोई टैक्सी मंगवाता है तो दिन के किराए के मुताबिक मैक्सिमम 3 यूरो 20 सेंट तक जो है ना मीटर होना चाहिए। उससे आपने जो जिस आदमी को पिक करना है उस तक पहुंचने तक आपके जो 3 यूरो 20 सेंट ही होने चाहिए, 340 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 340 रात को 4:20। हाँ, 3:40 सॉरी, और रात को जो 4:20 जो है होने चाहिए मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि आप उसके पहुंचने तक जो है ना उसको पिक करने के लिए 7 या 8 यूरो करना। उसके अंदर मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जब आप उसके दरवाजे पे पहुँचिए और जब आप उसे कॉल दें कि मैं पहुँच चुका हूँ उसने आपके मीटर पे, इससे ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए। उसके बाद वो अपने घर से उतरते हुए आधा घंटा लगा दे तो वो आपका टैक्सी मीटर चलता रहेगा, उसके ऊपर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मगर कानूनन अगर वो बंदा दरवाजे के ऊपर खड़ा है, जब वो आप उधर पहुँचते हैं वो दरवाजे के ऊपर मौजूद है, अपनी स्पॉट के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ पे टैक्सी मीटर दिन के टाइम 3:40 और रात को 4:20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर वो बंदा कहता है 5 मिनट मेरा वेट करो, आधे घंटे बाद आता है तो मीटर चलता रहेगा। वो उस बंदे के टाइम पे डिपेंड करता है। नाजरीन मोहतरम, अगर आप टैक्सी फ़ोन करके मंगवाएं तो अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना करें और फ़ौरन जो है वो सड़क के ऊपर आ जाएं ताकि टैक्सी के जो है वो पैसे ज़्यादा ना बढ़ें। यहाँ हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लज्जत और जायके की रवायत, बार्सिलोना में देसी खानों का मरकज़ आदल रेस्टोरेंट। बार्सिलोना सेंटर आएँ तो देसी जायकों का लुत्फ़ उठाएँ। वेलकम नाजरीन, हमें वक्फे के दौरान ज्वाइन किया है पाक टैक्सी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद खान साहब ने। मैं उनको वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार खान साहब। जी बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, आपसे सवाल ये है कि ये कुपो क्या है? ये हमने इस्तेलाह सुनी है, वरना पहले ज़माने में तो ये होता था कि वो कुपो जो है वो वीज़ा लगवा कर यहाँ पर आते थे काम का। ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टैक्सी का एक टर्म है, इसकी वो भी कुपो है। ये उनके लिए जो इम्प्रेस है, जो इम्प्रेस में आते हैं कि इन्होंने जो बार्सिलोना का इदारा है मेट्रोपॉलिटन का, उन्होंने एक परसेंटेज रखी हुई है कि इतनी टैक्सी जो इम्प्रेस से चला सकते हैं, वो उसको नाम दिया है इन कुपो का। और उसमें उन्होंने एक परसेंटेज फिक्स किया जो कि अभी पिछले साल 10% थी, अभी उन्होंने 11 कर दी है। उसमें जो कुपो में है कि बंदा उसमें वही शामिल होता है जिसकी एक से ज़्यादा टैक्सी है। एक टैक्सी वाला उसमें शामिल नहीं है। मतलब ये कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसके अलावा जितनी भी हैं 50 तक हैं, वो उसमें शामिल होता है। लेकिन ये फ़िक्स रहेंगी। कुपो का मतलब है इसमें अगर 200 टैक्सी है तो 200 ही रहेगी। अगर उसमें कोई बेचता है, अगर किसी की 2 टैक्सीज हैं तो वो एक उसको वो बेचना चाहता है तो
वो बेचेगा भी उसी को जिस जो लेना चाहता है, या तो वो अंदर वाला ले सकता है जिसके वो उस इदारे उसमें सिस्टम में आता है, अगर वो एक देता है लेकिन वो उस एक होने की वजह से वो बाहर निकल जाएगा उसको। मतलब कि सादा अल्फाज में 90% जो है ना उनकी तकसीम अपार्टिकुलर में कर दी गई है कि 90% टैक्सी के लाइसेंस लोगों के पास एक एक के हैं, और जो 10% है वो 10% किसी के पास 3 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 7 है। अब मेरे पास एक टैक्सी है, अब मैं 2 और परचेज़ करना चाहता हूँ, तो वो 3 वालों में से या 5 वालों में से या 7 वालों से कोई 2 बेचेगा तो मैं खरीद लूँगा। अब उस 5 वाले ने 2 बेच दी, उसके पास 3 रहेगी, मेरे पास भी 3 होगी, लेकिन वो जो फिक्स तादाद है कूपों की वो 10% की, वो 10% ही रहेगी। अच्छा, वही नहीं। एक चीज़ है उबेते से, ये क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है? उबेते से मिर्ज़ा साहब थोड़ी सी वीआईपी गाड़ी होती है, लग्जरी, और बाकायदा उसे भी परमिशन होती है हैज़ ए टैक्सी काम करने की, और बाकायदा पेगाटीना जो है स्टिकर लगा होता है, तो टैक्सी का? हाँ, उसमें मीटर होता है, लेकिन किराया जो है वो गाहक के साथ टैक्सी ड्राइवर ने तय किया होता है, तो वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता, जो लाजमी नहीं होता टैक्सी ड्राइवर के लिए कि मीटर के मुताबिक जो रकम बनेगी है वही वो पे करेगा, वो उसके साथ अपना बाकायदा तय कर लेता है किराया। लग्जरी सर्विस कह सकते हैं, मज़ीद लग्जरी। वैसे जो मैंने जो पढ़ा है कि जो बार्सिलोना की टैक्सी है ना वो भी लूफो में आती है, जो नॉर्मल टैक्सी येलो नेग्रो है ना ये हमारे पास, ये भी लूफो में आती है, लेकिन वो मज़ीद लग्जरी जो गाड़ियाँ हैं ना सारी दुनिया में हैं, वो कहीं पे भी आप जाए ना, अगर इवन हमारे अपने मुल्कों में भी वो सारे इस किस्म की गाड़ियाँ हैं, तो ये उबेते से जो है ये बाकायदा डिक्लेयर शुदा गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये वो थोड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाहता हूँ, ये उबेते से जो गाड़ी है ना ये चलते हुए रोड से सवारी नहीं कलेक्ट कर सकती है। अच्छा, ये स्पेशल इनके जो अपने कॉन्टैक्ट हैं होटल से, जो भी इनके ज़ाती पर्सनली कॉन्टैक्ट हैं, उनके ज़रिए ही अपना गाहक ले सकते हैं। ये नहीं होता कि आप जा रहे हैं वो आपको इशारा करेगा बिठा लेगा, इस तरह का सिस्टम नहीं है इसमें। ये नहीं आपको उठा भी सकते और ना ही आप उसमें बैठ सकते हैं। टैक्सी है लेकिन ये स्पेशल लग्जरी है, जिनके कॉन्टैक्ट वगैरह उन्होंने किए हुए आपस में होटल के साथ या पर्सनली बंदे के साथ, वो फ़ोन करके बुलाते हैं घर में, जिस जगह पर जाना हो वो होता है, किराया उनका आपस में जो भी उनकी कंडीशन होती हैं तय किया होता है। ये इसमें फ़र्क है, क्योंकि दूसरी गाड़ी तो आप जहाँ भी चाहें जो भी वो खड़ी कर सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं, 8 बंदा बैठ सकते हैं। लेकिन क्या इस टैक्सी का जो है इसके लिए भी वो ड्राइविंग लाइसेंस वही ज़रूरी है कि जो दूसरी टैक्सी के लिए, पीली टैक्सी के लिए ज़रूरी है? नहीं, जो है ना कर्दनसियाल जो टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस है, डिप्लोमा है, वो नहीं इसके लिए चाहिए होता। अगर आपके पास नॉर्मल लाइसेंस है तो उसके बाद आप बेटे पे का लाइसेंस कर लें और बेटे पे के साथ आप इसको चला सकते हैं। दूसरा ये है कि उबेते से जैसे कतलूनिया में पीली टैक्सी जो है वो 20,000 है और उबेते से पूरे कतलूनिया में सिर्फ 420 हैं, तो इनकी तादाद कम है। अगर कॉन्टैक्ट अच्छे हों तो आप, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, पाक टैक्सी एसोसिएशन की ऑब्जर्वेशन है, तो इन मौजूदा हालात में आप उबेते के से जो है ना माकूल पैसे कमा सकते हैं बनिस्बत दूसरी टैक्सी के। अच्छा, इसका और भी फ़र्क है, इसका और भी फ़र्क है। ये 24 आवर चलती है और इसमें कोई इसका छुट्टी नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी नहीं, इसमें वो गाड़ी रोकनी है और जाना है, इसका कोई मसला नहीं है। वो 7 दिन चलेगी और 24 आवर 365 दिन। वो कोई भी आदमी रखता है, भाई रख सकता है, कॉन्टैक्ट पे रखता है, इसमें वो भी मसला नहीं है रखने के लिए ड्राइवर का। सद भाई, ऐसी कोई टैक्सी आपकी टैक्सी एसोसिएशन में शामिल है उबेते से? नहीं, उबेते से की कोई भी टैक्सी हमारी एसोसिएशन में शामिल नहीं। उबेते से क्या सारी कतलूनिया में है या सिर्फ बार्सिलोना में है? नहीं, ये तो पूरे स्पेन में उबेते से हैं, लेकिन कतलूनिया में जो है इसके सिर्फ 420 लाइसेंस है उबेते से। 420 बड़ा ख़तरनाक हिंसा है। उसके बाद हम ज़रा थोड़ा सा मौजू को बदलेंगे। इफ्तिखार साहब, क्या हमारे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ कोई नस्ली तासुब का रवैया भी रवा रखा जाता है कि ये गोरा है, काला है, एशियन है, पाकिस्तानी है? जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल किया आपने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये तो हर माशरे में पाया जाता है, ये जो तवस्सुल है ना। ये सवाल ज़रा थोड़ा सा ईमानदारी के साथ इसका जवाब देना है कि क्या पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ यहाँ की फ़ीमेल सवारी बैठने में आसानी समझती है या कोई मुश्किल उसे आती है या वो बैठना पसंद नहीं करती? जी बिल्कुल, ईमानदारी के साथ मैं जवाब देता हूँ आपको कि कोई किसी किस्म का मसला नहीं लोग समझते। हाँ, तो
जनरली जिस तरह स्पेनिश लोगों के साथ भी बैठते हैं, हमारे साथ भी, बल्कि रात को जो है जो लोग डांस पार्टियों में जा रहे होते हैं तो उनकी ड्रेसिंग इस तरह की होती है, तो लड़कियां फीमेल जो है वो अकेली भी होती हैं और सम टाइम उन्होंने ड्रंक भी किया होता है। तो पाकिस्तानियों के साथ कभी भी ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैंने दो साल जो है कंटिन्यू रात को जॉब की है कि कभी ये देख कर कि पाकिस्तानी है और ना बैठा हो। मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बात आपको बता रहा हूँ। असल में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि असल में वो जो आगे इनकार करेंगे वो पाकिस्तानी या स्पेनिश होने की वजह से नहीं, क्योंकि टैक्सी जो ऐसी है बार्सिलोना में वो एक ऐसी गाड़ी है जो एतबारेबल है। वो हमारे साथ नहीं बैठते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं। उनको पता है ये जो टैक्सी है ये मुकम्मल तौर पर हमें हमारे लिए महफूज ज़रिया है, ट्रांसपोर्ट है। वो उसमें कोई झिझकते नहीं है बैठने में, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे स्पेनिश हो, कोई भी हो। ये वजह है। सद भाई, रात को टैक्सी चलाना आसान काम है या दिन में? आसान काम है, क्योंकि रात के टाइम ट्रैफिक नहीं होती। अच्छा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती, आपको बाइसिकल वाले जो वो तंग नहीं कर रहे होते, मोतो नहीं होती। हाँ। और रात के टाइम ये है कि ज़्यादा इजी होता है गाड़ी चलाना दिन की नस्बत। अच्छा इफ्तार सर, रात को अगर कोई टुन सवारी बैठ जाए, जैसे कि नशे में धुत होते हैं या कोई जहाज़ बैठ जाए और बाज़ दफ़ा वो किराया ना दे और दौड़ पड़े, तो आप क्या करते हैं? ये जो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा जो आप उसको बिठा क्यों रहे हैं। ये आपके ऊपर लाजमी नहीं है कि आप जो शराब पी हुई है जिसने वो अपनी होश में नहीं है, आप उसको इनकार भी कर सकते हैं। नॉर्मल पैसेंजर को आप नहीं इनकार कर सकते, लेकिन ऐसे पैसेंजर को आप इनकार कर सकते हैं। जब आपने देख लिया कि ये तो इसने शराब पी है, ये होश में नहीं है, आपने बिठा लिया, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको उसकी जगह पर छोड़ के आएँ। ये नहीं हो सकता कि आप उसको किसी और जगह छोड़ें या उसके साथ बिहेवियर रद्द करें। जब वो जाता है वो आपके पैसे नहीं देता, आपको हक हासिल है कि आप पुलिस को फ़ोन करें, जो आपके सिस्टम में लगा वो करें जो आपको देते, लेकिन आप को ये हक नहीं है कि आप उसके साथ लड़ाई करें। सही। वो जाता है तो आप पुलिस को बुला सकते हैं, वो इंतजार कर सकते हैं कि ये इसने पैसे नहीं दिए, तो ये सिलसिला कर सकते हैं। शहजाद साहब, कुछ ये दिन पहले खबर पढ़ने को आई कि जाली टैक्सियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप हमारे नाजरीन को बताना पसंद करेंगे कि वो जाली टैक्सियाँ क्या हैं और वो क्या काम करती हैं, उनका दायरा कार कहाँ तक है? जी, ये आज से 3-4 साल पहले तो सिर्फ एक ही बंदा था जो ये काम कर रहा था। अब जो हमने मुतलका अदारों को नंबर्स दिए हैं जाली टैक्सियों के, वो साथ दिए हैं, तो आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। और हमें खदशा है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये सगरादा फमिलिया या पार्क गिल भी खड़े हो जाएं और दिन के टाइम भी आवाज़ें लगाने लगें कि आपको 20 यूरो में या 30 यूरो में हम सिटी टूर करा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने जो कतलूनिया की गवर्नमेंट यहाँ पर कन्वर्जेंसी है उनको स्पेशली तौर पर मिलकर, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट IMT और उसके बाद डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कतलूनिया और मोसेस स्क्वाड्रा और ग्वार्डिया अरबाना को जो है ना बाकायदा तौर पर इन सारे डिपार्टमेंट्स और सियासी पार्टियों को भी हमने आगाह कर दिया है। तो कि तशवीश में इनमें अगर इजाफा हो गया तो फिर ये टैक्सी सेक्टर के लिए ख़तरनाक जो है ना एक मसला बन जाएगा। तो इनका तरीक़ा वारदात तो ये है, अभी तक तो पोर्ट ओलंपिक पे जो है ना रात के वक्त ये लोग काम कर रहे हैं और ये देखते हैं जब कोई आदमी वेल ड्रेस थोड़ा सा महसूस हुआ कि बिजनेसमैन है, उसके करीब गए, उनके पास कैटलॉग होती हैं, पिक्चर्स होती हैं काबा खानों की, और उन्हें पिक्चर्स दिखाई और कहते हैं कि अगर तुम्हें इस काबा खाने में जाना है तो हम तुम्हें ले जाएंगे, तो इतने पैसे लगेंगे, लेकिन टैक्सी जो है ना वो फ्री है, हमारे पास अपनी गाड़ी है तो टैक्सी के चार्जेस तो हमसे नहीं लेंगे। तो ये उन काबा खानों से कमीशन लेते हैं और उस कमीशन के बदले में जो है टैक्सी उसको जो है ना ग्रातिश यानी फ्री दे रहे होते हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मसले को गवर्नमेंट जो है संजीदा ले रही है, जल्द जो है कंट्रोल कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि अभी जो नोटेबल है ना वो पोर्ट ओलंपिक को भी है, लेकिन ये तकरीबन जो लातिनो अमेरिकन है जो उनके डिस्कोटेक हैं उन पर तकरीबन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आ जाते हैं अपनी गाड़ी लेके, वो भी, लेकिन वो लगता तो यही है कि ये इनके साथ हैं, लेकिन वो साथ नहीं होते हैं, वो भी एज ए टैक्सी ड्राइवर ही आते हैं, क्योंकि वो जितने भी उनके डिस्कोटेक हैं बार्सिलोना में, कोर्निया में, उनके सबसे सामने वो खड़े होते हैं, जाते हैं साथ अंदर हैं, डिस्कोटेक में भी जाते हैं, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करते क्योंकि उन्हें ड्राइविंग करनी होती है। उन्होंने पहले भी किराया तय किया होता है टेलीफोन के ज़रिए, वो लेके भी आते हैं और लेके भी जाते हैं, काम वही करते हैं,
لیکن وہ صرف ڈسکوٹیک تک لے کے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کافی جگہ پہ چل رہا ہے ابھی۔ ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ لذت اور ذائقے کی روایت، بارسلونا میں دیسی کھانوں کا مرکز عادل ریسٹورنٹ۔ ویلکم بیک۔ بارسلونا سینٹر آئیں تو دیسی ذائقوں کا لطف اٹھائیں۔ بارسلونا کے جو عہدیدار ہیں وہ موجود ہیں اور ان سے ہم پاک ٹیکسی ایسوسی ایشن کے مسائل اور ٹیکسی ڈرائیورز کے جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ سوال کریں گے شہزاد صاحب، کیا اس ٹیکسی سیکٹر کے اندر جو ہے میل تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ موجود ہیں، کیا کوئی پاکستانی فیمیل ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے؟ اگر ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے؟ یہ نارمل رویہ ہے، اسپینش بھی فیمیل کام کر رہی ہیں، پاکستانی بھی فیمیل ہے، اور اس کا خاوند جو ہے وہ بھی چلاتا ہے ٹیکسی، ان کی اپنی ذاتی ٹیکسی ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے، وہ بھی کچھ گھنٹے جو ہے ٹیکسی چلاتی ہے اور کچھ گھنٹے پھر گھر کا کام کاج اپنے بچوں کو دیکھتی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا اچھا سائن ہے۔ دوسرا، ہمارے یہاں بے شمار لوگ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں جب تک کام کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ بہت تصور تھا کہ وہ انتہائی محنتی لوگ ہیں۔ کیا ٹیکسی ڈرائیورز کے بارے میں بھی کوئی ایسا اچھا تاثر جو ہے وہ موجود ہے؟ یہ بہت اچھا تاثر ہے کہ کوئی بھی امپریساریو جو ہے یا کوئی بھی بندہ ہے، اگر اس نے اگر ٹیکسی ڈرائیور سے چاہیے تو ہمیشہ پاکستانی بندے کو پریفر کرتا ہے اور ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ایون کہ ہفتہ 2 ہفتے اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہ ملے تو رک جاتے ہیں۔ تو پاکستانی کو ہمیشہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ہم دوران کام نہ تو گھر میں کھانے کے لیے جاتے ہیں اور نہ ہی دوران کام رکتے ہیں۔ اور ہمارا ایک ڈیفرنس ہے دوسرے ٹیکسی ڈرائیور سے کہ اگر 12 گھنٹے کی شفٹ میں دوسرا جو ہے وہ 150 یورو لے کر جاتا ہے مالک کے لیے، ٹوٹل وہ اگر 150 یورو کماتا ہے تو پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور الحمدللہ 180 سے 200 یورو کے لگ بھگ جو تو 50-60 یورو کا فرق ہوتا ہے ایک شفٹ کا، اور ایماندارانہ رویے کا کہ ہم جو ہے ٹیکسی کا گاڑی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی کام کے دوران چوری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اچھے ان اعمال کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے جو یہ لوگ ہمیں پریفر کرتے ہیں کام دینے کے لیے۔ اچھا عاطف بھائی، کیا یہاں پر بھی وہ صورتحال ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ سواری کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھچا تو ہی، کہ ایک نے اس کا بازو پکڑ لیا، دوسرے نے اس کا بازو ہے میری سواری ہے میری سواری، کیا ایسی صورتحال یہاں پر بھی ہے کہ کوئی اس طرح کی کھچا تو ہی نظر آتی ہو؟ نہیں خیر ادھر تو نہیں ہے، اور یہ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ان کے سسٹم کو کہ بہت اچھا سسٹم ہے۔ اگر آپ کہیں پہ بھی جا کے اگر لیگل اسٹاپ ہے جو آفیشیل اسٹاپ میٹروپولیٹانا کا الاؤڈ ہے اس کے آپ کھڑے ہیں تو آپ نے اپنے نمبر کا انتظار کرنا ہے اور نمبر وائز آپ نے سواری بٹھانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھر آ جاؤ وہ نہیں چلتا ادھر۔ لیکن اس طرح سے کچھ شکایتیں تو ایسی آئی تھی کہ پاکستانی اس طرح کا رویہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی سواریاں چھینتے ہیں۔ دیکھیں پہلے جو ایک تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا جو ادھر چوک جو ڈسکوٹیک ہے ادھر ایک آفیشیل اسٹاف نہیں تھا، کیونکہ ادھر آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے ادھر، یا جہاں پہ کوئی اسٹاف آفیشیل اسٹاف نہیں ہے ٹیکسی کا تو جو چاہے بٹھا سکتا ہے، جس کے سواری کا دل کرتا ہے جس کے بھی اوپر بیٹھتے ہیں۔ لیکن ادھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ اچھا رویہ نہیں تھا پاکستانیوں کا، دوسرے بھی تھے، یہ پاکستانی صرف کہا جا رہا ہے کہ یہی ہیں، لیکن دوسرے بھی اسپینش بھی ہیں، دوسرے بھی لاطینو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ لیکن ابھی چونکہ پاک ٹیکسی ایسوسیشن کی وجہ سے ہم نے وہاں یہ دیکھا رویہ، تو وہاں پہ ہم نے درخواست دی متعلقہ ادارے کو، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی اسٹاف بن گیا۔ ابھی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ تھی میرے خیال میں، وہ تو میری نظر میں نہیں ہے، ادھر یہ سلسلہ تھوڑا ہوتا تھا، ابھی بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور جو راستے میں چلتے ہوئے ایسے بنتا ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پاکستانی کرتے ہیں، یہ اسپینش بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، لاطینو بھی کرتے ہیں۔ وہ کئی بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے، وہ آپ کراس کر گئے ہیں، پیچھے گاڑی والا آ رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے، جیسے آپ نے سواری اتاری ہو آپ نہیں اٹھا سکتے، وہ پیچھے والا ہے اس کا حق ہے ابھی، تو آپ کو نہیں پتہ چلا پیچھے آ رہا ہے کوئی تو آپ نے دوبارہ اٹھا دی، اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی طرح کے یہ آوازیں لگا رہے ہیں آپ ایک طرف آ جاؤ وہ اس کی طرف چلا جائے گا، یہ نہیں ہے ابھی۔ سعد بھائی، ایک سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ چونکہ ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستانی ہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سواری جیسے ہی ٹیکسی میں انٹر ہوئی تو وہ ڈرائیور نے جو ہے وہ نچر قسم کے گانے لگا دیے، کیا یہاں پہ بھی موسیقی الاؤ ہے دوران ڈرائیونگ یا کوئی پابندی ہے اس کی؟
कानूनन जो है आप रेडियो सुन सकते हैं, मगर ये कि अगर सवारी कहे कि रेडियो बंद कर दो तो आपको बंद करना पड़ता है। और उसके अंदर ये है कि अगर सवारी, क्योंकि जिस टाइम सवारी आपकी गाड़ी के अंदर बैठ रही है कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या उसकी डिमांड है। अगर वो कहते हैं गान कि रेडियो लगा तो आपको चलाना पड़ता है। अगर आप सुन रहे हैं और चाहे वो बारसे का मैच है, मैड्रिड का मैच है, सवारी आगे कहती है कि बंद कर दो कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो आपको बंद करना पड़ता है। नंबर 2, आपको जो हमेशा आवाज़ जो है वो मध्यम रखनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ अलावा है कि जब आप किसी टैक्सी रेडियो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तब उसका रेडियो आप जो है उसे ऑन रख सकते हैं, मगर वो बिलो आवाज़ के अंदर। मगर अगर नॉर्मल रेडियो है या अगर आप सीडी लगाई है और आप फील करते हैं कि आपकी सवारी डिस्टर्ब हो रही है तो आपको बंद करना पड़ता है। अच्छा शहजाद साहब, ये 1122 क्या है, 112 क्या है, ये सिस्टम क्या है, किस तरह ये वर्क करता है? जी, ये 112 पुलिस का एक सिस्टम है जो इंस्टॉल हुआ होता है टैक्सी के अंदर, और एक बटन होता है टैक्सी के अंदर जो अगर आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो उस बटन के ऊपर आप अपना पाँव रख देते हैं। तो ये सिस्टम कनेक्टेड है चूँकि पुलिस के साथ, तो अंदर जो भी बातें होती हैं वो आवाज़ जो है पुलिस डायरेक्ट सुन रही होती है और गाड़ी को उनको पता होता है किस जगह पे एग्जैक्टली गाड़ी है। तो फिर वो जल्द इस तरीके से कि अगर आपका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम बन रहा है तो आप उसके सामने फ़ोन कर रहे हैं तो वो आपको फ़ोन पकड़ने नहीं देता। तो एक सेफ एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है टैक्सी ड्राइवर की सेफ्टी के लिए। आप पाँव के नीचे बटन है उसको दबा दें तो डायरेक्ट आप पुलिस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इफ्तिखार साहब, ये सिस्टम जो है हर टैक्सी में मौजूद है? जी, ये हर टैक्सी में मौजूद है और ये ज़रूरी है कौन टैक्सी के। टैक्सी के जब तक वो उसकी ये कंडीशन पूरी नहीं होंगी, लवाजमात पूरे नहीं होंगे, वो आपको इजाज़त नहीं देंगे चलाने के लिए। और ये पहले नहीं था लेकिन अभी इन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको लाजमी करार दे दिया है। लेकिन आतिफ साहब, क्या जब ये 1122 का जो है बटन दबाया जाता है, 112 का बटन जो है दबाया जाता है, तो क्या पुलिस का रिस्पांस फौरी होता है या ताख़ीर करती है उसमें कोई पुलिस? देखिए जी, ये नौयत है आपकी ना, कैसे आपके अगर आपके साथ कोई सवारी बदतमीज़ी कर रही है तो उसकी नौयत का और बटन है, उसके लिए और चीज़ है कि आप उनके साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो। वो आप आगे से बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी है यार, तो हम उन्हें बताते हैं यार ये हमारे साथ बंदा बैठा है, ये पैसे नहीं दे रहा या ये लड़ रहा है, तो वो हमें पूरा प्रॉपर जो है ना वो तामन करते हैं। वो तकरीबन मसला हल हो जाता है। जब पुलिस बोलती है ना तो सवारी जो है उसके नशा भी उतर जाता है और तकरीबन पैसे भी दे देती है। उससे पता चल जाता है कि ये ना अभी पुलिस वाले आने वाले हैं। तो मेरे साथ एक दफ़ा हुआ है और पुलिस आती है, आई है पुलिस और उन्होंने मुझे पैसे भी लेके दिए हमसे। अगर किसी के पास पैसे हैं ही नहीं तो वो क्या देगा फिर? वो कहते हैं चलो, फिर भी ताउन करते हैं, कहते हैं सुबह आ जाना, होशियार करा देना। लेकिन तो ये प्रोसेस है, एक कानूनी चारा वही है जो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 2-4 यूरो या 10 यूरो के लिए कोई बंदा इतना लंबा प्रोसेस करता है। सद भाई, क्या पुलिस जो है वो रवैया जो है वो बिल्कुल ठीक रखती है या उनका भी कोई नस्ली तासुब की बुनियाद पर रवैया होता है पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से? पुलिस का तो नहीं होता। पुलिस का जो है, पुलिस ज़ाहिर वो कानून के मुताबिक चल रही होती है और कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो वो तो कम्प्लीटली जो है गैर जानिबदार होकर चलते हैं। उसके अंदर बाज़ दफ़ा ये होता है कि पुलिस वाले आपको मना कर रहे होते हैं कि इस जगह पे मत खड़े हो, या पुलिस वाले आपकी गलती नोट कर रहे होती है और आपको जब वो पकड़ लेते हैं तो उस टाइम आप कह सकते हैं कि जनाब ये लो, ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मगर ये कि ओवरऑल उनका रवैया नहीं है। मगर देखिए, जहाँ तक नस्ली तसब का मामला है उसके अंदर हर बंदे का इंडिविजुअल जो है आप उसको पूरी सोसाइटी के ऊपर नहीं उसके ऊपर कर सकते। एक बंदे का इंडिविजुअल जो रिस्पांस है डजंट मीन कि वो पूरी सोसाइटी का रिस्पांस है, और उसकी बेस पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं है। नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लज्जत और जायके की रवायत बार्सिलोना में देसी खानों का मरकज़ आदल रेस्टोरेंट। बार्सिलोना सेंटर आएँ तो देसी जायकों का लुत्फ़ उठाएं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ पाक टैक्सी एसोसिएशन के अहदेदार जो मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। शहजाद साहब, ये ममपारा क्या चीज़ होती है? जो सेपरेशन का सिस्टम है टैक्सी और ड्राइवर और मुसाफिर और ड्राइवर के दौरान, इसको ममपारा कहते हैं या ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल। ये क्या लाजमी होता है टैक्सी के अंदर? जी नहीं, ये लाजमी नहीं होता, और इसको लगाने के ऊपर थोड़े से चार्जेस भी आते हैं, और खर्चे की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो मुआशी बदहाली की वजह से ऐसे वाक़यात कंटिन्यू हो रहे हैं कि जो कि टैक्सी ड्राइवर की सिक्योरिटी के खदशात। और लेकिन लाजमी नहीं है,
ये पर्सनली है, अगर कोई अपनी स्कूटी क्लियर होना चाहता है। ये गाड़ी के जो ड्राइवर वो अगले में 2 सीटें उनके दरमियान में एक शीशे का रुकावट होती है, जिसके ज़रिए पीछे जो बैठे हैं पैसेंजर वो आगे नहीं आता, वो सिर्फ पैसे दे सकता है, वो बात कर सकता है। इसके अलावा वो आगे ड्राइवर के साथ किसी किस्म की कोई हाथापाई सिलसिला नहीं कर सकता। ये उसको मम्बरा कहते हैं जो गाड़ी में लगा वो शीशे का होता है और नज़र आ रहा होता है इसमें। अच्छा, बसा औकात हम ये बहुत खबरें पढ़ते रहे हैं और हमारे मुताले में आती रही हैं कि यूरोप में जो है वो टैक्सी के अंदर कोई सामान भूल गया और वो हज़ारों मालियत का सामान था और ड्राइवर ने जो है वो वापस पहुंचा दिया। क्या कभी कोई हमारे दोस्तों के साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है कि उन्होंने वो सामान वापस किया है या दरवट जाओ की पॉलिसी जो है वो इख्तियार की है? नहीं जी, करते हैं सामान वापस। अच्छा। हाँ, अगले दिन बल्कि जो 23 मार्च का प्रोग्राम था उसमें जो है पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स की जो हमारे जनरल कौंसल साहब हैं उन्होंने बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने बताया कि मुझे पता है कि iPhone 4 जब इनको मिलता है तो ये वापस कर देती हैं। और मेरे साथ ही जो एक दोस्त बैठे हुए थे वो भी टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता थे, तो फौरी तौर पर पहले 4 फ़ोन तो मैंने वापस किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदाराना रवैये की वजह से मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ये हमारा ईमानदाराना रवैया है, किरदार है, जिसकी बुनियाद पर ये लोग हमें प्रेफरेंस के तौर पर काम दे रहे हैं। इफ्तिखार, इस जराइम की क्या शरह है ड्राइवर्स के साथ कि बाज़ दफ़ा कोई चाकू की नोक पर लूट लेना या बंदूक रख के लूट लेना या वैसे मार धाड़ करके जो है वो चले जाना, ये क्या ज़्यादा वाक़यात हैं या कम वाक़यात हैं या होते ही नहीं हैं? ये देखिए, अभी जो ये सिस्टम लगा है, अभी हम तो नए आए हैं इधर, कुछ 5 साल से 7 साल से, लेकिन ये चूँकि आज से पहले हमारे टैक्सी चला रहे हैं, पहले फिर ये ख़राब थे हालात इनके। ये तो अमूमन होता रहता है, ये परसेंटेज का तो नहीं बता सकते हम, लेकिन अभी जब से ये 2005 या 6 से 7 से जब ये माशी बदहाली हुई है, उस वजह से ये थोड़ी इसकी शरह जो बढ़ गई है। ये सिर्फ टैक्सी ड्राइवर के साथ नहीं, मेरे ख्याल है गली में भी ये बढ़ गई हैं ये इस तरह के जुराइम। और नोट हमें थोड़ी इसलिए नोट होते हैं कि टैक्सी ड्राइवर जो हम वो ज़्यादा आपस में हमारा कॉन्टैक्ट होता है, इस वजह ज़्यादा जो बात चली जाती है। लेकिन ये पाकिस्तानियों के साथ भी हो रहे हैं, स्पेनिश के साथ भी हो रहे हैं मसाइल। अब इसको कह सकते हैं ये वजह जो है ना माशी बदहाली की वजह से ये इसमें जुराइम में इजाफा हुआ है, लेकिन परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता इसमें कैलकुलेट कितनी, लेकिन काफ़ी हद तक है इसमें। अच्छा साहब भाई, हमारे पाकिस्तानियों का ये मिजाज है कि अगर एक बंदे ने अगर PCO खोला था तो हमारा चलन जो है वो PCO बनाने की तरफ चल पड़ा था और हमने उस सेक्टर का जो है बेड़ा गर्क करके जो है वो छोड़ा है। इसी तरह से हमने देखा कि बाज़ दोस्त जो है वो एलिमेंटेशन की फील्ड में आए हैं तो हमने एलिमेंटेशन की फील्ड में जाना शुरू कर दिया। इसी तरह से बेशुमार कारोबार हैं। आजकल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों का रुझान जो है वो इस तरफ है कि टैक्सी सेक्टर में आया जाए। तो क्या आप ये समझते नहीं कि ये रुझान जो है ये इस सेक्टर में भी जो है वो तबाही का पेश खैमा हो सकता है? नहीं, यहाँ पे तबाही का पेश खैमा तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 10,200 लिमिट है वही कंप्लीट लिमिट है, उससे ज़्यादा टैक्सी बढ़ नहीं सकती। हाँ, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट खुली छूट दे दे तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम लोगों का रवैया चेंज नहीं होगा, हम लोग भी वही करेंगे जो इससे पहले मुख्तलिफ कारोबार जो है उनके साथ कर चुके हैं। मगर अगर पाकिस्तानी उन 10,200 में से अगर सारे के सारे पाकिस्तानी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। क्योंकि इस टाइम सिर्फ टैक्सी सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जो लोगों को काम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर इनकमिंग बहुत ज़्यादा लोग अगर एंटर हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग भी इस काम से निकल रहे होते हैं। इस वजह से हमारी तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम पाकिस्तानी सेक्टर के अंदर आएँ, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर आके आप अपने मुल्क का एक बेहतरीन सफीर साबित हो सकते हैं और अपने घर वालों का इन हालात के अंदर भी एक बहुत अच्छी रिजनेबल इनकम के ऊपर आप अपना सिस्टम चला सकते हैं। अच्छा, क्या शहजाद साहब, ये टैक्सी ड्राइवर जो है इनका भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के साथ जो है वो वाबस्तगी है कि बाकायदा इनकी भी सोशल सिक्योरिटी पे होती है और बाद में पेंशन वेंशन या जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो इनको मिलते हैं? जी बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहा है टैक्सी ड्राइवर। बाकी जो साद भाई ने कहा है कि जो पूरे स्पेन में इस वक्त जो है वो 60,000 टैक्सी है जो काम कर रही है, तो इन्होंने पीछे से पहले सोचा था पिछले साल के इसको लिबरे कर दिया जाए और इनकी ऑब्जर्वेशन थी इस तरह इस सेक्टर में 3.5 से 4 लाख लोग जो है ना वो काम करेंगे, और अब जहाँ पर 60 लाख लोग टैक्स हमें दे रहे हैं वहाँ पर हमें 4 लाख लोगों का टैक्स। तो हमारा ये मौक़िफ़ था गवर्नमेंट से कि ठीक है आप इसको लिबरे कर दें, फ्री कर दें,
ہم نے یہ جو لائسنسیا کا 1.5 لاکھ یورو پے کیا ہوا ہے، آپ ہمیں یہ پیسے دے دیں اور اس کو لیبرے کر دیں. 60,000 جو ٹیکسی کے لائسنس ہے جو ان کے لیے کام ہے نہیں، تو 4 لاکھ ٹیکسی جو ہے جب کام کریں گی تو ان کے لیے کام کہاں سے آئے گا؟ تو خیر پھر وہ مینیفیسٹاسیون کا جو ہے پورے اسپین کی جتنی بھی ایسوسیشن تھی، فیڈریشن تھی، وہ پروگرام بنا. پھر باقاعدہ طور پر روٹ جو ہے وہ طے کیا گیا، اور فیڈراسیو کتلانا دل ٹیکسی کے جنرل سیکرٹری خوسف ماریا گونی اور اسٹاک جو ہے ان کے پریزیڈنٹ جو ہے سینیور خوسے لوئس باربل، اور میں جو ہے پاک ٹیکسی ایسوسیشن کے فورم سے ہم تینوں پارلیمنٹ کتلونیا میں گئے، اور جتنی بھی یہاں کی سیاسی پارٹیاں ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو اپنا موقف بیان کیا، اور انہوں نے تائید کی ہمارے موقف کی. اسی طرح ہمارا ایک نمائندہ جو ہے وہ میڈرڈ میں جو یہاں کے وزیر اعظم صاحب ہیں راہوئی، تو ان کو اپنے سارے مسائل جو ہے نا بتائے. تو جو ڈیٹ تھی ہماری مینیفیسٹاسیون کی، اس سے پہلے ہی ہمارے مطالبات مان لیے گئے اور ہم نے وہ اپنی مینیفیسٹاسیون جو ہے وہ کینسل کر دی. اچھا افتخار صاحب، اگر کوئی بندہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ٹیکسی کا، لیکن وہ اس شعبے میں آنا چاہتا ہے انویسٹر کے طور پہ، یعنی وہ ٹیکسی خریدنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے مواقع ہیں کہ وہ ٹیکسی خرید سکے؟ جی، وہ ٹیکسی خرید سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو اگر وہ خود چلانا چاہتا ہے تو اس کو، نہیں اگر وہ خود نہیں چلانا چاہتا، وہ خود نہیں چلانا چاہتا، یہ ٹیکسی جو ہے نا یہ نہیں خرید سکتا. وہ نہیں خرید سکتا، یہ نہیں خریدتا ڈائریکٹ. لیکن اس کے لیے دوسرا طریقہ ہے کہ وہ ایک کمپنی بنائے جس کو ہم امپریسا کہتے جی ہیں. جی، اس میں اپنی پرسنٹیج رکھے گا اس میں، اور اس پرسنٹیج، لیکن اس کا جو ڈائریکٹر ہوگا جو بھی اس کو چلا رہا ہے امپریسا کا، وہ کریڈینشیل والا ہونا چاہیے جس کے پاس ٹیکسی چلانے کا لائسنس ہو. صحیح. وہ اس کا 1% ہو یا 10% ہو، وہ ایک علیحدہ مانی رکھتا ہے، وہ اس کا آپس میں طے کر لیں گے. اور پھر وہ جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، ایک چاہے 10 ہیں 10 ٹیکسی خرید رہے ہیں جو بھی. لیکن وہی سلسلہ جو آپ پہلے شروع میں بتایا تھا کوپو کا، وہ لیکن وہ کوپو کے اندر سے وہ خریدیں گے. وہ 2 خریدتے ہیں 3 خریدتے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. وہ اس کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو بھی تحفظ ہوگا، کیونکہ جو کمپنی ہے اس میں جو جس پرسنٹیج کے ساتھ وہ اس کا شیئر ہے، اسی کے حساب سے وہ اس کی پرسنٹیج جو ہے نا اور اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ محفوظ ہوگی. اس کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو اکیلا نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کریڈینشیل نہ ہو. صحیح. اچھا سر صاحب، آپ ترجمان ہیں پاک ٹیکسی ایسوسیشن کے، سنا ہے کہ میسج سسٹم آپ کے ہاں جو ہے وہ بہت کام کر رہا ہے. وہ میسج کیا ہوتا ہے، اس کی کیا افادیت ہے، کیا آپ کے اراکین جو ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم لوگ اس ٹائم الحمدللہ ہمارے 447 ممبرز ہیں، اور تمام ممبرز کو ہم لوگ ڈیلی ایک SMS کرتے ہیں جو ہے نا 500 جو ہے نا ایگزیکٹلی 513 ہے. 513 ممبرز ہیں ہمارے. اور اس کے اندر یہ کہ ان تمام ممبرز کو ہم لوگ ڈیلی جو ہے ایک SMS کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اگلے دن آنے والے جو ہے نیکسٹ ڈے کا ہم لوگ بتاتے ہیں کہ مین ایونٹس جو ہے شہر کے اندر اس کی کمپلیٹ انفارمیشن دی جاتی ہے، تاکہ جس فرد نے کل کام پہ نکلنا ہے وہ پہلے جو ہے اپنا مائنڈ سیٹ کر لے کہ شہر کے اندر کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کس جگہ پہ کام ہوگا. اور اس کی افادیت ہے، اور لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ آخری سوال ہے، یہ آپ تمام لوگوں سے ہے کہ کبھی دوران ٹیکسی چلانے کے دوران آپ کو کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ کسی نے لمبے روٹوں پر آپ کے ساتھ کنڈکٹر بننے کی خواہش کا اظہار کیا ہو؟ ہوتا ہے پر جان چھڑا لیتے ہیں. یعنی ہوتا ہے پر جی اتنا نہیں ہوتا جتنی آپ نے سن رکھا ہے میرا خیال ہے، لیکن ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کبھی افتخار صاحب ہوا؟ ہوتا تو میرے خیال میں یہ میں کہوں کہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کرتے ہیں وہی ہیں جو ہوش میں نہیں ہوتے. اچھا. تو لیکن وہ تو نہیں ہوش میں ہوتے، آپ تو ہوش میں ہوتے ہیں نا. ہاں جی. تو وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ اپنا کام عزیز ہے، ہمیں یہی لازم ہے. ہمارا مقصد اور ہوتا ہے. ہمارا مقصد اور ہوتا ہے. تو یہ تو گلی میں دوسری جگہ جب یہ سلسلہ مل سکتا ہے، لیکن اس وقت آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو وہی عزیز ہے. آپ کو یہ انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یا کیا سلسلہ ہے. آپ کو یہ انٹرسٹ ہوگا کہ یہ جو پیسے مجھے پے کر دے جا کے جہاں پہ جانا ہے اس نے. مجھے ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ٹیکسی سیکٹر میں دیکھا جائے نا تو آپ پاکستان جاتے ہو، آپ نے بھی ماشاء اللہ داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر خدا یاد رہتا ہے نا تو پاکستان کی بجائے ہمیں ادھر زیادہ یاد رہتا ہے.
اور جس سیکٹر میں ہم ہیں نا تو میں کہہ دیا اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اگر ہماری بالکل کلیئر چٹ دے دینا نیت بالکل صاف کر لیں تو ہم تو ولی ہو جائیں جتنا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ جب سواری اتارتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی درود کوئی نہ کوئی کلمہ ہمارا چالو ہوتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہوتا ہے ایسا ہی ہے ہر بندہ اللہ پاک کو جو ہے نا وہ سونپ رہا ہے یا اللہ ابھی کوئی نئی سواری مل جائے نئی سواری مل جائے تو مطلب بات کرنا کہ یہ ہے کہ ہر وقت خدا یاد رہتا ہے پاکستان جا کے شاید اذان کی آواز آ جاتی ہے 5 ٹائم لیکن اتنا نہیں جتنا ادھر رہتا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ کے سامنے ہمارے ٹیکسی ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے اپنے مسائل جو ہے اپنے معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں ان کی کٹھنائیاں ان کی مشکلات جو ہے وہ ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آئی ہیں. پھر یہ کہ نئے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہے اس پیشے کو اختیار کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.